Nepal. नेपाल से मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ। Or we used to say that Sabai ki Jai Masi. सबको जय मसीह। It's a great joy and privilege for me to speak to you this evening. मेरे लिए बहुत ही एक सौभाग्य की बात है, आनंद की बात है कि मैं आपसे आज बातचीत कर रहा हूँ। And praise the Lord for the assembly, Allahabad Brethren Assembly. और इलाहाबाद ब्रदरन कलीसिया के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। I thank all the elders who invited me through Brother Alex Bovis to speak to you or teach you God's word this evening. और मैं सभी अगुओं का धन्यवाद देना चाहता हूँ भाई एलेक्स के साथ में, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया कि मैं परमेश्वर के वचन से आज बांट सकूं। And I understand that last couple of months that you gathered like this manner and learn and study God's word. और मैं समझता हूँ कि पिछले कुछ महीने से आप लोग इस प्रकार इकट्ठे होकर परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते आ रहे हैं। And I believe that through God's servants, through His living word, God was continuously speaking to you. और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर अपने वचन, जीवित वचन के द्वारा और अपने सेवकों के द्वारा आपसे बातचीत करते आ रहा है। And once again, thank you all of you for joining to study God's word even this evening in the midst of a difficult time. और एक बार फिर से मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इकट्ठा हुए परमेश्वर का वचन सुनने के लिए इस विपरीत समय में भी। And last 22 years we are serving the Lord in this country, Nepal. पिछले 22 साल से हम परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं नेपाल में। And I am here with my family serving the Lord in three different places of Nepal. और यहाँ पर part of Nepal. मैं अपने परिवार के साथ यहाँ पर हूँ और 3 अलग जगहों में पूर्वी नेपाल के पूर्वी 3 जगहों में मैं सेवकाई कर रहा हूँ। And God is lifting up local brothers to take the responsibility of the assemblies. और परमेश्वर वहाँ के लोगों में से सेवकों को खड़ा कर रहा है ताकि कलीसियाओं का देखभाल कर सकें। And brothers together, as an assembly together, we moved to these 3 different places and continuously serving the Lord for last many years. और हम सब भाई एक साथ मिलकर इन जगहों में परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से। And praise the Lord for this evening. और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस शाम के लिए। And God has given us this privilege again to be in His presence and continuously study, learning from His word. परमेश्वर ने फिर से हमें सौभाग्य दिया है कि हम उसकी उपस्थिति में आ सकें और उसके वचन से अध्ययन कर सकें। And we know that the topic has chosen from the book of the Song of Solomon. और आज का जो अध्ययन है वो श्रेष्ठ गीत से लिया गया है। Chapter 2 verse 3. उसका दूसरा अध्याय उसकी तीसरी आयत। And as brother Alex Bobas was telling me that let it go like a Bible study, so I just wanted to take that privilege and we will be studying God's word. और भाई एलेक्स ने कहा था ये बाइबल अध्ययन के समान है, तो उसी प्रकार मैं यहाँ पर अध्ययन लेना चाहूँगा। And we known as this is a song of Solomon. और ये सुलेमान का गीत करके जाना जाता है। By that title itself, we understand that this is written by King Solomon. और इस शीर्षक से हम समझते हैं कि ये राजा सुलेमान द्वारा लिखा गया था। Or some of the other translation, when we look into, we understand that this is a song of songs. और जब कुछ अलग अनुवाद में हम देखते हैं तो हम इसको श्रेष्ठ गीत करके पढ़ते हैं। And why do we call it that this is a श्रेष्ठ गीत? और हम इसे श्रेष्ठ गीत क्यों कहते हैं? Or why do we call it using a superlative sense, song of songs? और क्यों हम लोग इसको दोहराते हैं कि ये श्रेष्ठ गीत है या गीतों का गीत है? The reason is
according to 1 Kings chapter 4 verse 32. इसका जो कारण है हम पहला राजा उसके 4 के 32 में पाते हैं। We understand from that verse, 1 Kings chapter 4 verse 32, Solomon wrote almost 1,500 songs. और इस वचन के अनुसार हम जानते हैं कि सुलेमान ने लगभग 1500 गीत लिखे। 1005 1005 गीत लिखे। And among all the 1005, Song of Songs known as the best song that we got it. और 1005 गीतों में ये जो श्रेष्ठ गीत है ये सबसे बेहतरीन समझे जाते हैं। And that is the reason it is known as Shrestha Geet, the Song of Songs. और यही कारण है कि उसे श्रेष्ठ गीत करके कहा गया है। And when we very personally study this book, और जब हम इस किताब को बार-बार अध्ययन करते हैं, and it is one of the loveliest book in God's word. Can you repeat? It's a loveliest book in God's word. और ये परमेश्वर के वचन में बहुत ही सुंदर किताब है। It has eight chapters. और इसके 8 अध्याय हैं। With 117 verses. और 117 वचन हैं इसमें। Once we do the study of all this book at a time, जब हम इस पूरे किताब का अध्ययन करते हैं एक समय में, we understand that in these 8 short chapters, Solomon mentions about 15 animals' name. हम देखते हैं कि इस 8 अध्याय में सुलेमान 15 जानवरों के नाम का उल्लेख करता है। And he mentioned about 21 plants. और 21 पौधों के बारे में लिखता है। And he mentioned about 15 geographical backgrounds from Lebanon in the north to Egypt in the south. और लगभग 15 वो जगहों के बारे में लिखता है, लेबनान से लेकर it is from Lebanon to the south of Egypt. लेबनान से लेके जो मिस्र के दक्षिण भाग उधर तक के बारे में लिखता है। And we know that this is one of the very beautiful poem. और हम जानते हैं कि बहुत ही सुंदर एक कविता के समान है। And even many poets talk about Jesus, about Rose of Sharon or Lily of the Valley in their poetry. और कई सारे जो कवि हैं वो इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह को शारोन का गुलाब करके कहें। But when we very closely look into, परंतु जब हम लोग इसको बारीकी से देखते हैं, we have more beautiful suitable title for the Lord Jesus in this book. हम प्रभु यीशु मसीह के और कई सारे सुंदर जो शीर्षक हैं उनको हम देखते हैं। That we read in chapter 5. और ये हम 5वें अध्याय में पढ़ते हैं। The titles are altogether lovely. जो शीर्षक हैं वो बहुत ही सुंदर हैं। Or we have another title in the same chapter, Chief Among 10,000. और एक और शीर्षक हम देखते हैं इसी अध्याय में 10,000 में एक। And when we look into all this study very closely, और जब हम ये सब को देखते हैं और इसका अध्ययन करते हैं, and it will give us a correct understanding about how beautiful this book is. और ये हमें एक सही समझ देगा कि ये किताब कितनी सुंदर है। And we know that scholars have divided or interpreted, they take the interpretation almost 3 or 4 ways about this book. और हम जानते हैं कि जो बाइबल के पाठक हैं उन्होंने लगभग 3 या 4 इसके व्याख्या दिए हैं इस किताब के। But the literal translation or literal interpretation is a love story of Solomon towards the Shulamite girl or the woman. परंतु जो मूल भाषा से जब हम समझते हैं तो ये एक प्रेम
की कहानी है सुलेमान से उस शुलेमी स्त्री के लिए। Yes. And I think you need to follow this clearly before we start that we have chosen. और आपको इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा जब हम लोग इस किताब का अध्ययन करते हैं। And as I said, as a literal interpretation, we can take it Solomon's love towards the Shulamite girl. और जब हम लोग सीधे सीधे इसका अनुवाद करते हैं तो ये सुलेमान की Or we can even understand that a husband's love for his wife. या फिर हम समझ सकते हैं कि एक पति का प्रेम अपनी पत्नी के लिए। Scholars have interpreted different way. बाइबल के व्याख्या करने वालों ने अलग तरह से इसका व्याख्या किया है। And keeping all that view in my mind, और इन सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए I have taken this passage, chapter 2, verse 3 and 4, with its symbolic meaning for our study today. और मैंने इस दूसरे अध्याय उसके तीसरे और चौथे आयत को लिया है और इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। With its symbolic meaning, a parallel meaning. उसका जो किस प्रकार उसको एक चित्र के रूप में दिखाया गया है उसके उस अर्थ को हम समझेंगे। That is, I will make it very simple. The symbolic meaning is not just the husband and husband's wife towards the wife. It is the Christ love towards the church. ये जो चित्र के रूप में जो हम इसका अर्थ समझेंगे वो कि केवल ये पति का पत्नी के लिए प्रेम नहीं है परंतु मसीह का किस प्रकार कलीसिया के लिए प्रेम है उसको देखेंगे। That's what I meant, the symbolic meaning. और यही मेरा अर्थ था जो किस प्रकार ये एक चित्र है। Keeping that we are going to meditate and study this passage. और इस बात को ध्यान में रखते हुए हम इस भाग का अध्ययन करेंगे। And let's read chapter 2, verse 3 and 4. और दूसरा अध्याय उसका 3 और 4 आयत पढ़ेंगे। Please, brother, you can read it in Hindi. श्रेष्ठ गीत दूसरा अध्याय उसका 3 और 4 आयत। जैसे सेब के वृक्ष जंगल के वृक्षों के बीच में, वैसे ही मेरा प्रेमी जवानों के बीच में है। मैं उसकी छाया में हर्षित होकर बैठ गई और उसका फल मुझे खाने में मीठा लगा। वह मुझे भोज के घर में ले आया और उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता था वह प्रेम था। And I'm very sure that this passage we might have read it several times in service. और मैं विश्वास करता हूं कि हमने इस भाग को कई बार पढ़ा होगा अपने आराधना की सभा में भी। From this passage for today's study topic, I have in his shade I sat down. और इस भाग से जो मैंने शीर्षक इस अध्ययन का चुना है वो है उसके छाया में। In his shade I sat down. बैठ गई। That's what the topic for tonight. In his shade I sat down. और आज शाम का जो शीर्षक है वो है मैं उसकी छाया में बैठ गई। Under this topic, we are going to study 7 truths from these 2 verses. और इस शीर्षक के अंदर हम लोग इन 2 आयतों में से 7 सच्चाइयों को सीखेंगे। From verse 3, we are going to learn 4 truths. तीसरा आयत से हम 4 सच्चाइयों को सीखेंगे। From verse 3, we are going to study 4 things. तीसरा आयत से हम 4 बातों को सीखेंगे। And from verse we are going to learn 3 things. और चौथे आयत से हम 3 बातें सीखेंगे। And though we normally just read and go, usually go ahead with these passages. और साधारण तौर पर हम लोग इन भागों को पढ़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। But I am very sure that as we meditate and study these 2 verses, the Lord have many things more to talk to us.
परंतु मैं विश्वास करता हूं कि जब हम इन दो वचन का अध्ययन करेंगे तब प्रभु हमसे कई सारी बात Because as we read this passage, if you have your Bible with you, please look at God's word. और मैं निवेदन करूंगा अगर जब हम लोग अध्ययन कर रहे हैं अगर आप लोग के साथ में बाइबल हो तो आप लोग उसका अध्ययन करें For our study, we will be looking and reading again chapter 2, verse 3. और अध्ययन के लिए हम फिर से दूसरा अध्याय उसका 3 आयत पढ़ेंगे Please, brother, please, you can read. जैसे सेब के वृक्ष जंगल के वृक्षों के बीच में वैसे ही मेरा प्रेमी जवानों के बीच में है मैं उसकी छाया में हर्षित होकर बैठ गई और उसका फल मुझे खाने में मीठा लगा And the word beloved is in this passage, in this chapter itself, is repeating again. और हम देखते हैं कि जो शब्द प्रेमी है इसी अध्याय में ये दोहराया गया है And for our study, I am taking the third and the fourth part of this verse. और हमारे अध्ययन के लिए इस वचन के तीसरे और चौथे भाग को मैं लेना चाहूंगा We read like this: In his shade I took great delight and sat down, and his fruit was sweet to my taste. हम पढ़ते हैं मैं उसकी छाया में हर्षित होकर बैठ गई और उसका फल मुझे खाने में मीठा लगा As I said, in a symbolic sense, the love of Christ for the church is pictured. और जिस प्रकार मैंने कहा था कि ये एक चित्र है कि यहाँ पर हम मसीह का प्रेम कलीसिया के लिए देखते हैं In this verse, the bride is speaking about her bridegroom. इस वचन में जो दुल्हन है वो अपने दूल्हे के बारे में बता रही है And she is expressing, we have a glimpse of the sufficiency, what all the things that we supposed to have it from the bridegroom. और वो बताती है कि जो दुल्हन है उससे किस प्रकार की संतृप्ति मिलती है उसे And when we read Romans chapter 8 verse 16 and 17, जब रोमियो हम पढ़ते हैं रोमियो उसका 8 अध्याय उसका 16 और 17 आयत please turn with me to Romans chapter 8 verse 16 and 17. रोमियो उसका 8 अध्याय खोलेंगे उसका 16 और 17 आयत Please, brother, read it. आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं और यदि संतान हैं तो वारिस भी वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं कि उसके साथ महिमा भी पाएं When we read it in chapter 2 verse 3, the bride is expressing the sufficiency through the bridegroom. जब हमने दूसरे अध्याय के तीसरा आयत में पढ़ा था कि जो दुल्हन है वो अपने दूल्हे में किस प्रकार संतुष्ट है उस बात को हमने देखा When we था think about as we God children, जब हम लोग इस प्रकार देखते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं Romans 8, 16 and 17 talking about three things. रोमियो 8 उसका 16 और 17 तीन बातों के बारे में कहता है Number one is we are children of God. पहली बात है कि हम परमेश्वर के संतान हैं Second thing is we are heirs of God. और दूसरी बात है कि हम परमेश्वर के वारिस हैं And the third thing is we are joint heirs with Christ. और तीसरी बात यह है कि हम मसीह के साथ संगी वारिस हैं And this is the truth Paul recorded in Romans about the greatness of God's children and the relation with the Lord Jesus Christ. और ये वो सत्य है जो कि पौलुस प्रभु यीशु मसीह के साथ जो रिश्ता है परमेश्वर के संतान होते हुए जो सुंदर बात है उसके बारे में बताता है And if we are going to meditate in that context, और अगर हम इस संदर्भ में अध्ययन करें our relationship with our Lord Jesus Christ हमारा जो प्रभु यीशु मसीह के साथ संबंध है and his relation with us, और प्रभु यीशु मसीह का हमारे साथ संबंध and what are the rich blessings we have in Christ as our beloved Lord. और वो महान आशीष क्या है जो कि हम मसीह में हमारे हैं प्रभु जो हमारा प्रिय प्रभु है And what are the rich blessings that we have in Christ Jesus as our beloved Lord. और मसीह यीशु में जो हमारा प्रभु है हमारे क्या वो महान आशीष हैं
And that's what we are going to study this evening. और यही आज की शाम हम अध्ययन करेंगे. As I said, from these two verses, we are going to look into 7 truths. इस प्रकार मैंने कहा था इन 2 आयतों से हम 7 सत्य सीखेंगे. Our blessings in Christ, मसीह में हमारी आशीषें, who is our beloved Lord. जो कि हमारा प्रिय प्रभु है. Truth number 1. पहला सत्य, In my beloved, I have rest. which verse uncle? It's verse chapter 2, verse 3, the third part. In I will repeat again, in my beloved, I have rest, R-E-S-T, rest. मेरे प्रेमी में मुझे आराम है. Yeah, that's the right thing. Yeah, in my beloved, I have rest. मेरे प्रेमी में मुझे आराम मिलता है. When we read chapter 2, verse 3, जब हम दूसरा अध्याय का 3रा आयत पढ़ते हैं, and we read like this, in his shade I took great delight and sat down. हम पढ़ते हैं, मैं उसकी छाया में हर्षित होकर बैठ गई. Listen that word very carefully. इस वचन को ध्यान से सुनिए. I delight to sit in his shade. मैं उसकी छाया में हर्षित होकर बैठ गई. The word sitting, ये जो शब्द है बैठना, or we say I sat down in his presence. या फिर जिस प्रकार हम कहते हैं कि मैं उसकी उपस्थिति में बैठ गया. The word sit, expressing the perfect rest she found in his presence. The bride found her perfect rest in the bridegroom. शब्द बैठने में हम ये समझते हैं कि जो दुल्हन है उसे अपने पत्नी में वो सिद्ध आराम मिला, अपने दुल्हे में. And who normally used to sit? साधारण तौर पर कौन बैठता है? Or when we study about this Shulamite woman, what happened to her that she has to express in this way? और जब हम इस शुलेमी स्त्री के बारे में पढ़ते हैं तो उसके साथ क्या हुआ कि वो इस प्रकार दिख रही है? That she is expressing, verse 3, the whole expression about her lover. 3रे आयत में वो अपने प्रेमी के बारे में सब कुछ बता रही है. And she says that like an apple tree among the trees of the forest, so is my beloved among the young men. और वो कहती है जैसे सेब के वृक्ष जंगल के वृक्षों के बीच में, वैसे ही मेरा प्रेमी जवानों के बीच में है. And remember the expression again, in his shade I took great delight and sat down. The word sat down, sitting down in his presence. और इस वाक्य पे ध्यान दीजिए, मैं उसकी छाया में हर्षित होकर बैठ गई. यहाँ पर बैठने की बात कही गई. And what happened to her? और इसके साथ क्या हुआ? And when we look into chapter 1 verse 6, और जब हम पहला अध्याय उसका 6 आयत देखते हैं, even verse 5 and 6, we can read it to understand what happened to her. Please read chapter 1 verse 5 and 6. पहला अध्याय उसका 5 और 6 आयत पढ़ेंगे. हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं काली तो हूं परंतु सुंदर हूं. केदार के तंबुओं की ओर सुलेमान के पर्दों के तुल्य हूं. मुझे इसलिए न घूर कि मैं सावली हूं, क्योंकि मैं धूप से झुलस गई. मेरी माता के पुत्र मुझसे अप्रसन्न थे. उन्होंने मुझको दाग की बारियों की रखवालिन बनाया, परंतु मैंने अपनी निज दाग की बारी की रखवाली नहीं की. She is very clearly saying that do not stare at me because I am dark. वो बहुत स्पष्ट कहती है कि मुझे मत घूरो क्योंकि मैं सावली हूँ. How she become dark? ये सावली या काली कैसे हुई? And the next verse says, for the sun has burned me. क्योंकि कहती है कि धूप से मैं झुलस गई. Because she was a caretaker of the vineyards. क्योंकि वो दाग के बारियों की रखवालिन थी. She was continuously working in the vineyard.
वो निरंतर उस दाख की बारी में कार्य करती थी and without any shade she was working under the sun. और बिना किसी छाया के वो धूप के नीचे काम करती थी And she is tired और वो थकी हुई है and she is looking for shelter and shade. और वो उस आराम के लिए और उस छाया को ढूंढ रही है And when we come down to chapter 2 verse 3 says, in his shade I sat down. और जब हम दूसरे अध्याय के तीसरे आयत में पढ़ते हैं तो देखते हैं कि कहती है कि मैं उसकी छाया में बैठ गई. My dear brothers and sisters, as we are God children, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम लोग परमेश्वर की संतान हैं, and this is even true with each and every one of us even today. और ये आज भी हम में से सबके लिए सच है. And when we read Matthew's Gospel chapter 11, जब हम मत्ती का सुसमाचार पढ़ते हैं उसका 11 अध्याय, Matthew 11 verses 28 till 30, मत्ती उसका 11 अध्याय उसका 28 से लेकर 30 आयत तक please read. पढ़ेंगे. ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है. And it says that come to me all who are very and heavy laden. यहाँ पर लिखा है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, and I will give you rest. और मैं तुझे विश्राम दूंगा. And you will find rest for your souls in me. और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे. And I am very sure that last 5 to 6 months we all are with heavy burden even today. और मैं मानता हूं कि पिछले 4-5 महीनों से हम लोग बोझ से दबे हुए हैं. Very unexpected days and months are passing away or passed away. और बहुत ही विपरीत समय इस समय बीत रहे हैं. Some of our dear ones left us. और हम में से हमारे कई सारे प्रिय लोग धरती छोड़कर चले गए. Of course, lakhs of people left us from this world last 5 to 6 months of time. ये बात सच है कि पिछले 5-6 महीनों में कई लाखों लोग गुजर गए. We know that thousands and thousands of people got sick. और हम जानते हैं कि हजारों लोग बीमार हुए. And many are burden of losing their job. और कई लोगों के अंदर कई बोझ है कि वो अपनी नौकरियां खो दी हैं. Some already lost their job. और कईयों ने अपनी नौकरी खो दी है. And when we look around, there is no business. और जब हम आसपास देखते हैं तो व्यापार भी नहीं चल रहा. There is no school, there is no colleges. और स्कूल नहीं चल रहा है, कॉलेज नहीं चल रहा. Or any other activities around us normally. और जो साधारण जो कार्य होते थे वो सब नहीं चल रहे हैं. And I am very sure that everyone who is hearing me tonight, we all are with heavy burden. और मुझे निश्चय है कि जितने भी लोग सुन रहे हैं उन सबको ये बोझ है आज. My dear brothers and sisters, remember, rest is only in his shade. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस बात को याद रखो कि जो विश्राम है केवल प्रभु यीशु मसीह की छाया में है. Though we are all with burden, भले ही हम सब को ये बोझ है, and we have the right place to find rest, that is in our Lord Jesus Christ. परंतु हमें विश्राम पाने के लिए सही जगह है और वो प्रभु यीशु मसीह है. And he said that even you will find rest for your souls. और प्रभु यीशु मसीह ये भी कहता है कि तुम अपने मन में विश्राम पाओगे. Definitely the rest of our soul is only through our Lord Jesus Christ. ये बात निश्चय है कि जो हमारे मनों का जो विश्राम है केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है. And I praise the Lord for every children of God who find your rest of your soul in the Lord Jesus Christ. और मैं उन सब परमेश्वर के संतान के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं जो प्रभु यीशु मसीह में उस मन का विश्राम पाते हैं. If anyone have not yet received the rest of your souls through Jesus Christ, my dear brothers and sisters, anyone listening to me, maybe a child, maybe a teenager, you can find the rest of your soul in the Lord Jesus Christ by accepting him as your Savior and Lord.
मेरे सुनने वालों में से जो भी में से कोई भी हो जिसने अभी तक ये जो मन का विश्राम जो प्रभु यीशु मसीह मिलता है नहीं पाया हो, तो मैं आपसे विनती करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आप भी ये मन का विश्राम पा सकते हैं। In my beloved, I have rest. मेरे प्रेमी में मुझे वो विश्राम मिलता है। You know what Psalm number 91 verse 1 says? क्या आप जानते हैं भजन संहिता उसका 91 उसकी पहली आयत क्या कहता है? Psalm 91 verse 1. भजन संहिता 91 उसकी पहली आयत। Please read that, brother. जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाने पाएगा। It's a lovely verse for us to comfort even today in his rest. ये बहुत ही एक सुंदर वचन है जो कि आज हमें सांत्वना देता है। He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। Please turn with me to 27, Psalm 27 verse 5. मेरे साथ भजन उसका 27 उसकी 5वीं आयत खोलें। Please turn with me to Psalm 27 verse 5. खोलेंगे भजन 27 उसकी 5वीं आयत। Please read, brother. क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। Look at that emphasis in God's word. और देखिए किस प्रकार परमेश्वर के वचन में जोर दिया गया है। For in the day of trouble he will conceal me in his tabernacle, in the secret place of his tent he will hide me. विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा। That word is so much heart touching. In the secret place of his tent I have rest. और ये जो वचन है ये हमारे दिलों को छूता है, जो लिखता है कि अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा। Dear brothers and sisters, this is not just for hearing God's word. This is to meditate that we should experience the rest in the secret place of His tent, God's tent. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये केवल एक पढ़ने की चीज नहीं है, परंतु मनन करने की बात है कि हम परमेश्वर के तंबू के गुप्त स्थान में विश्राम पाएं। There is rest in the secret place of God. परमेश्वर के उस गुप्त स्थान में विश्राम है। The first point that we were looking into, that is, in my beloved I have rest. जो पहली बात हमने देखी थी वो ये थी कि मेरे प्रेमी में मुझे विश्राम मिलता है। And the word that we highlighted, it was she was sitting. The word sitting or sat or sit. और जिस बात पर हमने गौर दिया था वो ये था कि वो बैठी। The second thing, जो दूसरी बात है, in my beloved I have protection. मेरे प्रेमी में मुझे सुरक्षा है। The second truth is that I have protection in my beloved. जो दूसरी सच्चाई है वो ये है कि मेरे प्रेमी में मुझे सुरक्षा मिलती है। Now come back to Song of Songs chapter 2 verse 3 again. वापस श्रेष्ठ गीत उसके दूसरे अध्याय की तीसरी आयत में आ जाइए। In his shade I took great delight and sat down. मैं उसकी छाया में हर्षित होकर बैठ गई। Now listen that word. First we have taken the word sit. पहला जो हमने शब्द लिया था वो बैठना लिया था। The second word we are going to pick up from this verse is from where she will get the protection, in his shade. दूसरा शब्द हम देखेंगे वो है उसकी छाया में। I hope that you are following it. और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे साथ में हैं। She sat, she found rest. वो बैठ गई, वो विश्राम पाई। Now she says that in his shade that she sat. और वो कहती है कि वो उसके छाया में बैठ गई। Where that she found protection. जहां पर उसे सुरक्षा प्राप्त हुई। The word shade in God's word teaches about protection. ये जो शब्द है छाया, ये परमेश्वर के वचन में सुरक्षा को दर्शाता है। And I will just read for understanding one verse, the book of Judges, chapter 5 verse 15.
और इसको समझने के लिए हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, न्यायों की किताब उसका 5वां अध्याय उसका 15 No, आयत। chapter 9, verse 15. न्यायों की किताब 9वां अध्याय उसकी 15वीं आयत। Yes, please read, brother. झड़बेरी ने उन वृक्षों से कहा, यदि तुम अपने ऊपर राजा होने को मेरा अभिषेक सच्चाई से करते हो, तो आकर मेरी छां में शरण लो, और नहीं तो झड़बेरी से आग निकलेगी, जिससे लबनोन के देवदारू भी भस्म हो जाएंगे। The word shade talking about protection. ये जो शब्द छाया है, ये सुरक्षा को दर्शाता है। And it says that if in truth you are anointing me as kings over you, come and take refuge in my shade. और यहाँ पर कहता है, यदि तुम अपने ऊपर राजा होने को मेरा अभिषेक सच्चाई से करते हो, तो आकर मेरी छां में शरण लो। This word is so really truth about even us today. और ये जो शब्द है, ये आज भी हमारे लिए बहुत ही सच है। When we read Psalm 63 verse 7, जब हम भजन उसका 63 उसका 7वां आयत पढ़ते हैं, please read Psalm 63 verse 7. पढ़ेंगे भजन उसका 63 7वीं आयत। For you have been my help, and in the shadow of your wings I sing for joy. तू मेरा सहायक बना है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। My dear brothers and sisters, we have protection in his shade. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर की छाया में हमें सुरक्षा है। Look at that verse 7. For you have been my help, and in the shadow of your wings I sing for joy. 7वां आयत फिर से देखेंगे, क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। It is very true that we have spiritual and physical protection in Christ Jesus. ये बहुत सच है कि प्रभु यीशु मसीह में हमें शारीरिक और आत्मिक सुरक्षा है। We read in John's Gospel chapter 10 about our spiritual protection. यूहन्ना के सुसमाचार 10वें अध्याय में हम अपने आत्मिक सुरक्षा के बारे में पढ़ते हैं। And when we read Colossians chapter 3 verse 3, और जब हम कुलुसियों उसका 3रा अध्याय उसकी 3री आयत पढ़ते हैं, oh, we can understand the beauty of the protection that the Lord has given to us. जो सुरक्षा प्रभु ने हमें दिया, उसकी सुंदरता को हम समझते हैं। Please turn with me to Colossians chapter 3 verse 3. मेरे साथ खोलिए कुलुसियों उसका 3रा अध्याय उसकी 3री आयत। For you have died and your life is hidden with Christ in God. क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। Now listen that emphasis in God's word. परमेश्वर के वचन में किस प्रकार जोर दिया गया उसको देखिए। We are hidden with God. We are hidden in Christ with God. क्योंकि और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। Dear brothers and sisters, even today in a very difficult situation like this, we have protection in him, in his shade. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस खतरनाक समय में भी परमेश्वर की छाया में हमें सुरक्षा है। The first thing is, in my beloved I have rest. पहली बात हमने देखी थी कि मेरे प्रेमी में मुझे विश्राम मिलता है। The second thing is, in my beloved I have protection. और जो दूसरी बात हमने देखा कि मेरे प्रेमी में मुझे सुरक्षा मिलता है। And in the third thing is, in my beloved I have full of joy. और तीसरी बात हम देखते हैं कि मेरे प्रेमी में मुझे आनंद मिलती है। Look at again the word 3, verse 3, chapter 2, Song of Songs, chapter 2, verse 3. फिर से श्रेष्ठ गीत उसका 2रा अध्याय 3री आयत देखिए। Remember the word, I took great delight. The word delight. ये शब्द पर गौर दीजिए कि मैं हर्षित हो गई। That word is very beautiful, harshit, or the word delight. I took delight to sit in his shade. ये बहुत ही सुंदर एक वचन है कि मैं हर्षित होकर उसके छाया में बैठ गई। And she says that I love it. I love to sit in his shade. और कहती है कि मुझे
बहुत ही आनंद होता है उसके छाया में बैठने में, I am so happy to sit with him. और मैं कितनी हर्षित हूँ उसके साथ बैठने के लिए। My dear brothers and sisters, even this is true with us, with every child of God. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये बात हम सब परमेश्वर के संतान के लिए सच है। When we sit with him, जब हम उसके साथ बैठते हैं, when we sit in his shade, जब हम उसके छाया में बैठते हैं, that's a great joy of continuously sitting in that beautiful presence. ये बहुत ही एक आनंद और हर्ष की बात है कि हम उसकी उपस्थिति में बैठते हैं। Do you know that what we read in Psalm 16 verse 11? जो बात हम भजन उसके 16 अध्याय 11 आयत पढ़ते हैं। Psalm 16 verse 11. भजन 16 उसका 11 आयत। You will make me known to me the path of life. In your presence is fullness of joy. In your right hand there are pleasures forever. तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। Let me ask you this evening, are we experiencing his joy in times of troubles and testing at time like this? मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहूंगा कि इस विपरीत समय में जब हमें परखा जा रहा है, तब फिर क्या आप परमेश्वर के आनंद को महसूस कर पा रहे हैं? And I'm very sure that we are thinking about how things will go ahead. और मैं मानता हूं कि हम सोच रहे हैं कि किस प्रकार चीजें होंगी आगे। The college students or school students may be thinking how the life will go ahead of the time. हम जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं वो लोग सोच रहे होंगे कि अब आगे किस प्रकार समय होगा। But my dear brothers and sisters, we should understand the fullness of joy being in his presence. परंतु मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में वो आनंद की भरपूरी को महसूस करना है। I said three things. मैंने 3 बातें कही। In the beloved we have rest. मेरे प्रेमी में मुझे विश्राम है। We have protection. और मुझे सुरक्षा है। We have full of joy. और मुझे आनंद की भरपूरी है। The same verse is talking in another truth. और उसकी वचन में वो दूसरी एक सच्चाई के बारे में बताता है। Song of Songs chapter 2 verse 3. श्रेष्ठ गीत उसका 2 अध्याय उसकी 3 आयत। The last portion says, and his fruit was sweet to my taste. और उसका जो आखिरी भाग है उसमें लिखा है, उसका फल मुझे खाने में मीठा लगा। In the fourth truth is, in my beloved I have provision. तो चौथी सत्य है वो ये है कि मेरे प्रेमी में मुझे मेरी जरूरतें पूरी होती हैं। The need that is, he is providing our needs. मेरी जरूरतें पूरी होती हैं। Definitely we have rest in him. जरूर हमें उसमें विश्राम मिलता है। We have protection in his presence. और उसकी उपस्थिति में हमें सुरक्षा मिलता है। We have full of joy in his presence. और उसकी उपस्थिति में हमें आनंद की भरपूरी मिलती है। Look at that, she is telling that his fruit was sweet to my taste. और ये भी देखिए कि वो लिखती है कि उसका फल मुझे खाने में मीठा लगा। The fruit of tree under she is sitting. जो जिस वृक्ष के नीचे वो बैठी उसका फल। And she found sufficiency and satisfaction in his provision for her. और जिस प्रकार वो उसकी जरूरतों को पूरी करता है उसमें वो संतुष्ट है। My dear brothers and sisters, what is the sweet, satisfying fruit that we have asked God children? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये जो फल है जो कि मीठा है, परमेश्वर के संतान होते हुए हमारे पास क्या है? Or how can we have this fruit? या फिर ये जो फल हम कैसे पा सकते हैं? We can only understand from God's word. We can have this fruit only through our union with our Lord Jesus Christ. और हम समझ सकते हैं परमेश्वर के वचन से कि ये फल केवल जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा संबंध होता है तभी हम प्राप्त करते हैं। We are very sure that we know about the fruit in Galatians chapter 5 verse 22 and 23. हमें इस बात का निश्चय है कि हम इस फल के बारे में जानते हैं। गलातियों उसके 5वें अध्याय उसके 23 आयत। It's very by-hearted by most of us.
और हम में से ज्यादातर लोग इसको अच्छे से जानते हैं, याद है। We read about the fruit of the Holy Spirit, हम पवित्र आत्मा के फल के बारे में पढ़ते हैं, the fruit of love, जो प्रेम का जो फल है, joy, और आनंद, peace, और long suffering, दया, goodness, और भलाई, faithfulness, faithfulness, विश्वास योग्यता, gentleness, और कोमलता, self-control. और अनुशासन। My dear brothers and sisters, we cannot produce this fruit ourselves. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये जो फल है ये हम अपने आप से उत्पन्न नहीं कर सकते। Remember, it is His fruit. ये इस बात को याद रखिए कि ये उसका फल है। His fruit only can taste our, can only sweet our taste. केवल उसका फल है जो कि हमारे उसको स्वाद को मीठा करता है। Do you know what we read in Hosea chapter 14 verse 8? क्या हम होशे उसके 14 अध्याय के 8 अध्याय में आयत में क्या पढ़ते हैं? Please read Hosea chapter 14 verse 8. होशे उसका 14 अध्याय उसकी 8वीं आयत पढ़ेंगे। Please brother, please read. इब्राहिम कहेगा, मूर्तों से अब मेरा और क्या काम, मैं उसकी सुनकर उस पर दृष्टि बनाए रखूंगा। मैं हरे सनोवर सा हूं, मुझी से तू फल पाया करेगा। Listen the last portion. From me comes your fruit. जो आखिरी भाग है उसको सुनिएगा, मुझी से तू फल पाया करेगा। From the Lord comes our fruit. प्रभु से हमारा फल आएगा। The fourth that we were learning, in the beloved we have provision. और यही बात हमने सीखा था कि हमारे प्रेमी में हमारी जरूरतें पूरी होती हैं। The fifth point, the fifth truth is, जो पांचवी सत्य है वो ये है, 5, 6 and 7 truths that we find it in verse 4. जो पांचवा, छठा और सातवां जो सच्चाई है जो हम चौथे आयत में पाते हैं। Please read verse 4, chapter 2 of Song of Songs, verse 4. श्रेष्ठ गीत दूसरा अध्याय का चौथा आयत पढ़ेंगे। वह मुझे भोज के घर में ले आया और उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता था वह प्रेम था। And I'm very sure that this is a very familiar verse for most of us. और मैं विश्वास करता हूं कि हमारे लिए सुपरिचित ये वचन है। In my beloved, I have guidance. मेरे प्रेमी में मुझे मार्गदर्शन है। We have rest in Him. हमें उसमें विश्राम है। We have protection in Him. उसमें सुरक्षा है। We have full of joy in Him. उसमें आनंद की भरपूरी है। And we have provision in Him. और उसमें हमारी जरूरतें पूरी होती हैं। Now we read about we have guidance in our beloved. और अब हम पढ़ते हैं कि हमारे प्रेमी में हमें मार्गदर्शन मिलता है। Now listen this word, He has brought me to His banquet hall. इस वचन को सुनिए, वह मुझे भोज के घर में ले आया। There is 2 words that we need to really remember. यहाँ पर 2 शब्द हैं जो कि हमें ध्यान देना है। He and me. वो और मैं। He has taken me to His banquet hall. वह मुझे भोज के घर में ले आया। Listen that, He has taken me. वह मुझे ले आया। Come with me to understand this verse. Please turn with me to Psalm 32 verse 8. और इसको समझने के लिए हम देखेंगे भजन 32 उसका 8वीं आयत। Now when we read Song of Songs chapter 2, the Shulamite girl is saying, my lover, my beloved, taken me, brought me to his banquet hall. और जब हमने श्रेष्ठ गीत में पढ़ा था, स्त्री बोलती है कि मेरा प्रेमी मुझे उस भोज के घर में ले आया।
Listen that not just Boj ki ghar mein, his banquet hall. He has taken me to his banquet hall. वो कहती है कि वह मुझे अपने भोज के घर में ले आया. That's a beautiful word. अपने भोज के घर में. To his banquet hall. उसमें लिखा है कि वो मुझे अपने भोज के घर में ले आया. It's not that somebody has taken me. इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ने कोई मुझे ले गया. It's not that some of my relatives have done that. ये नहीं है कि कोई मेरे रिश्तेदार लोगों ने ये किया. He has taken me to his banquet hall. वह मुझे अपने भोज के घर में ले आया. Come with me to 32 Psalm verse 8. मेरे साथ भजन उसका 32 उसका 8वीं आयत. We read like 32 Psalm number 32 verse 8. भजन 32 उसका 8. I will instruct you and teach you in the ways which you should go. I will counsel you with my eye upon you. मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा. मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा. Listen this expression in God's word. ये जो परमेश्वर के वचन में लिखा है इसको ध्यान दीजिए. It's not says that I will instruct us. ये नहीं लिखा है कि Us, the plural word. It's not the plural word you use. It's a singular word you used. इसमें बहुवचन का इस्तेमाल नहीं किया गया है. It says that I will instruct you. यहाँ पर लिखा है कि मैं जिस मार्ग में तुझे चलना होगा मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा. My dear brothers and sisters, the instruction of our Lord is very personal. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जो परमेश्वर की ओर से जो मार्गदर्शन मिलता है वो बहुत ही व्यक्तिगत होता है. His guidance is personal. परमेश्वर का जो मार्गदर्शन है वो व्यक्तिगत है. His leading is gentle. उसकी जो अगुवाई है वो कोमल है. His direction is accurate. और उसका जो मार्ग है या उसका जो इशारा है वो एकदम सही है. His direction is certain. उसका जो इशारा है वो बिल्कुल निश्चय है. His direction is purposeful. और उसका मार्गदर्शन योजना के अनुसार. Please come with me to Psalm 37. भजन 37 देखेंगे. Psalm number 37. भजन 37. We read verse 23 and 24. 23 और 24 आयत में पढ़ते हैं. Please read, brother. 23 and 24 of Psalm. भजन 37 उसका 23 और 24 आयत. मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है. चाहे वह गिरे तो भी पड़ा न रह जाएगा क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है. Let me ask you tonight, are we really experiencing these words in our life? आज की शाम में आपसे पूछना चाहूंगा, क्या हम लोग सत्य में इस वचन को महसूस कर पा रहे हैं? Are we experiencing His very personal guidance in our Christian life? क्या अपने मसीही जीवन में हम परमेश्वर के उस व्यक्तिगत मार्गदर्शन का अनुभव कर रहे हैं? In our personal lives? हमारे व्यक्तिगत जीवनों में? In the life of our family? हमारे पारिवारिक जीवन में? In the life of our school life or college life? हमारे स्कूल जीवन में, हमारे कॉलेज के जीवन में? Or in the life of our business or any other work that we are doing? या हमारे व्यापार में या जो भी हम कार्य कर रहे हैं? Look at this. The steps of a man are established by the Lord. He delights in his way. When he falls, he will not be headlong, because the Lord is the one who holds his hand. तो फिर से देखिए, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है. चाहे वह गिरे तो भी पड़ा न रह जाएगा क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है. My dear brothers and sisters, He is our guide. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर हमारा मार्गदर्शक है. We have guidance in our beloved. और हमारे प्रेमी में हमें मार्गदर्शन. In any circumstances and situations of our lives. हमारे जीवन के जो अलग परिस्थिति होते हैं.
The sixth point is, जो छठवां बात हम देखते हैं, come back to Song of Songs chapter 2 verse 4. वापस हम श्रेष्ठ गीत उसका दूसरा अध्याय The उसका sixth चौथा truth, पढ़ेंगे। the sixth truth is, in my beloved I have fellowship. जो छठवीं सत्य है वो है कि, can you repeat? In my beloved I have fellowship. मेरे प्रेमी में मुझे सहभागिता है। Not saubhagyata, I think sangati. Fellowship, it is sangati. मेरे प्रेमी में मुझे संगति है। That's right. He said that he has brought me to his banquet hall. और यहाँ पर लिखा है कि वह मुझे अपने भोज के घर में ले आया। We learned this from the word that we said that he has taken me to the banquet hall. हमने इसके बारे में सीखा था कि उसने मुझे अपने भोज के घर में ले आया। In another translation says he has taken me to the house of delight. और एक दूसरे ट्रांसलेशन में इसको कहा गया है कि जो हर्ष का जो घर है वहां पर उसको मुझे ले आया। And definitely the banquet hall is the place of fellowship. और ये बात निश्चित है कि जो भोज का घर है वो एक संगति का घर है। And it's a place of fellowship. और ये एक जगह है जहां पर संगति मिलती है। It's a house of delight. और ये एक हर्ष का घर है। As we are God's children, इस प्रकार हम परमेश्वर के संतान हैं। my dear brothers and sisters, we enjoy the fellowship around his table, that is Lord's Supper. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग His table, around his table, around the Lord's table, we have fellowship each other. परमेश्वर का जो टेबल है उसके चारों तरफ हम संगति पाते हैं। That's what 1 Corinthians 11 that we read. और यही बात पहले कुरिन्थियों उसके 11 आयत में हम पढ़ते हैं। But we know that last 5 to 6 months more that we are not able to gather together for breaking of bread. परंतु हम जानते हैं कि पिछले 4 से 5 महीने हम लोग रोटी से भागीदार होने के लिए नहीं मिल पाए। And the whole world is going through such time assemblies like us. और इस पूरे संसार में जो कलीसियाएं हैं वो इससे होकर गुजर रही है। We do not know why the Lord have really allowed us his church, his children to go through a situation like this. और हम नहीं जानते हैं कि क्यों परमेश्वर ने अपने कलीसिया को इस प्रकार की परिस्थिति से होकर गुजरने दिया। Many a times this will give us a break to rethink why Lord this has happened. और कई बार हम लोग इसके कारण रुकेंगे और सोचेंगे कि प्रभु ये क्यों हो रहा है। Many a times that we have gone to the fellowship around his table. कई बार जब हम लोग परमेश्वर के उपस्थिति में जाते हैं और संगति पाते हैं। But many a times that we went without having the real rest in him. लेकिन कई बार हम जाते थे बिना उसमें जो विश्राम पाए। Many times that we went around his table not really enjoying the full joy in his presence. और कई बार हम लोग उसके मेज पे जाते थे बिना उसके आनंद की भरपूरी का अनुभव किए। And keeping all the malices and difficulties of the heart that we have gone many times to around the table. और कई बार अपने सारे जो परेशानियों को और अपने दिक्कतों को लेकर हम अपने उस मेज के पास जाते हैं। Not exactly having his guidance that we have gone to around the table. परमेश्वर के उस अगुवाई, उसके मार्गदर्शन के बिना हम उसके मेज के पास जाते हैं। Dear brothers and sisters, time have come to recheck about our own fellowship with God. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये समय आया है कि जब हम अपने परमेश्वर के साथ हमारी जो संगति है उसको फिर से एक बार देखें। The house of delight, the banquet hall, is a place of fellowship. ये जो भोज का घर है ये एक संगति का जगह है। Fellowship around his table. उसके मेज के चारों तरफ संगति। Fellowship around his word. और उसके वचन के चारों तरफ संगति। Fellowship in prayer.
और प्रार्थना में संगति fellowship in service of serving Him. और उसकी सेवकाई में जो संगति. But the question is, are we doing it? Did we do it with all sincerity of heart towards Him? परंतु प्रश्न ये है कि क्या हमने ये सब बातें अपने मन की सिधाई के साथ किया कि नहीं. We learn in my beloved, I have fellowship. हमने सीखा कि मेरे प्रेमी में मुझे संगति मिलती है. The seventh and the last truth is, जो सातवीं और जो आखिरी सत्य है, in my beloved, I have victory. मेरे प्रेमी में मुझे विजय मिलता है. Look at that verse again, verse 4. फिर से चौथी आयत देखेंगे. It says that, and His banner over me is love. उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता है वह प्रेम था. His banner over us. उसका झंडा मेरे ऊपर. Not our banners. हमारा झंडा नहीं. Many a times we try to make our own banners. कई बार हम लोग अपने खुद के झंडे बनाने की कोशिश करते हैं. But definitely, banner is a sign, a symbol of victory. ये बात सही है कि जो झंडा है ये विजय का एक चिन्ह है. My dear brothers and sisters, tonight we should understand we share His victory. We share Christ's victory in our life. भाइयों और बहनों, हमें इस बात को आज शाम याद रखना है कि हम मसीह के विजय के सहभागी हैं. Not by our own works. हमारे कार्यों के द्वारा नहीं. Not by our own efforts. और हमारे मेहनत के द्वारा नहीं. But many a times this is a sad thing in our assemblies. Many times we try to lift up our own banners. ये बहुत ही दुख की बात है कि हमारी कलीसिया में कई बार हम अपने ही झंडे को फहराते हैं. But many a times we forget that we share the victory of Christ in our life and ministry. और कई बार हम भूल जाते हैं कि हम परमेश्वर मसीह के उस विजय के सहभागी हैं. Look at this verse. It says that, and His banner over me is love. इस वचन को गौर से पढ़िए कि उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता था वह प्रेम था. If we really have all this in our beloved, अगर हम सच्चाई से ये सब चीजें अपने प्रेमी में पाते हैं, what more that we need in this troublesome days? तब फिर इस परेशानी के समय में हमें और क्या चाहिए. When we read Romans chapter 8 verse 37, जब हम लोग पढ़ते हैं रोमियो उसका 8 उसकी 37 आयत, we are more than conquerors in Christ Jesus. मसीह यीशु में हम जयवंत से भी बढ़कर हैं. We are more than conquerors in Christ. मसीह में हम जयवंत से भी बढ़कर हैं. Beloved brothers and sisters, प्रिय भाइयों और बहनों, as we studied from these two verses of Song of Songs chapter 2, जब हमने श्रेष्ठ गीत के दूसरे अध्याय के इन 2 आयतों को अध्ययन किया, these great truths are very true with each and every one of us. ये जो सच्चाई है ये हम सब के लिए सही है, सत्य है. In my beloved, I have rest. मेरे प्रेमी में मुझे विश्राम मिलता है. I have protection. और सुरक्षा है. I have full of joy. और मुझे आनंद की भरपूरी है. I have provision. और मेरी जरूरतें पूरी होती हैं. I have guidance. मिलता है. I have fellowship. और मुझे संगति मिलती है. I have victory. और मुझे विजय मिलता है. Do we experience that in Christ in our Christian life? क्या अपने मसीह जीवन में हम इन मसीह में इन बातों को का अनुभव करते हैं? Do we experience that in this very difficult times that we are going through? इस बहुत ही विपरीत और खतरनाक समय से जब हम गुजर रहे हैं, तो क्या हम इन बातों का अनुभव कर रहे हैं? Do we really hide in His tent? क्या हम सच में उसके तंबू के उस गुप्त जगह में छिपे हैं? Do we enjoy the presence of Him in every days of our life? क्या हम
उसके उपस्थिति का आनंद उठाते हैं अपने प्रतिदिन के जीवन में। In Christ, we are more than conquerors. मसीह में हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। That's what we read in Song of Songs, chapter 2. The theme is, in his shade I sat down. और यही श्रेष्ठ गीत के दूसरे अध्याय में हमने शीर्षक देखा था कि मैं उसके छाया में बैठ गई। My dear brothers and sisters, as we closing our word, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम इस अध्ययन को अंत करते हैं, go back to home and meditate these two verses again and again. और अपने घरों में इस वचन को बार-बार अध्ययन करिएगा। Not only that, you noted down these points. इतना ही नहीं, परंतु इन बातों को आप लिख लीजिए। Find out, experience true rest and protection in Christ. मसीह में उस सच्चे सुरक्षा को, विश्राम को पाइए। Enjoy the full of joy in him. और मसीह में वो आनंद की भरपूरी पाइए। Because over us he put his banner. क्योंकि उसका जो झंडा हमारे ऊपर फहराता है। May the Lord continue to be with us and bless us through the listening of his word. और परमेश्वर के इस वचन के सुनने के द्वारा परमेश्वर हमारे साथ रहे। I sat down in his shade. मैं उसके छाया में बैठ गई। God's name may be glorified. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। I take this opportunity again to thank the Allahabad Assembly elders for inviting me to join with you and teach God's word. और मैं फिर से इलाहाबाद के कलीसिया के अगुवों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे आमंत्रित किया परमेश्वर के वचन से बांटने के लिए। Thank you, dear brother Renchit, for translating. और अनुवाद करने के लिए भाई का धन्यवाद। And thank you, brother Alex, for inviting me on behalf of your assembly. और भाई एलेक्स, आपकी कलीसिया की तरफ से मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। Thank you everyone for listening. और आप सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद। I sat down in his shade. मैं उसके छाया में बैठ गई। धन्यवाद भाई सामजी जॉन, अनुवाद करने के लिए। भाई धीरज को भी धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर के वचन से 7 सच्चाइयों हम सीख रहा था। वह मुझे अपने बोझ के घर में ले आया। उसने उसका छाया में हमें बैठने दिया। प्रभु ने सचमुच बात किया। धन्यवाद देते हैं। 7 सच्चाइयों का बारे में हम सुना। प्रभु में हमको आशीष है और उसमें सुरक्षा भी है और आनंद है और हमारा जरूरतों